Shrimate Bhakti Swami Nityanami Namah Krishna Krishnaya Namaste Saraswati Gauravani Prachari Nirvishesha Vashatadishatari Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachari Nirvishesha Shunyavadi Paschatadishatari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Gaur Bhakta Vrinda Jaya Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna,
नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Hare Krishna. Thank you so much, Divya Prem Prabhu and Prabhu Mataji. And yesterday was Divya Prem Prabhu's birthday. So all our wishes and prayers for you, Divya Prem Prabhu. Thank you so much for Great year ahead. Wonderful to see you. कभी कभी दर्शन देते रहा करिए आप बीच में. Thank you so much. Hare Krishna. So we have His Grace Rasanand Prabhu with us for our next second session of Guru Ashtakam prayers. So we heartily welcome Rasanand Prabhu by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna Prabhu ji. Most welcome. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. So I hope everyone is doing well. Hare Krishna. So last week we discussed Guru Ashtakam verse 1. Yes. आज हम सेकंड वर्स चर्चा करेंगे महाप्रभु कीर्तनामृत गीता. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. So last week we explained the first verse of Guru Ashtakam by Vishwanath Chakravarti Thakur, Samsara Dava Nalalega Loka. And हम ये चर्चा किया कि फर्स्ट जो लाइन है गुरुवाष्टकम में, संसार दावा नल लीला लोक. इस भौतिक संसार में लोग किस प्रकार दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, ये जितना अच्छे से हम समझ जाएंगे, एक आध्यात्मिक गुरु की इम्पोर्टेंस हमें उतनी अच्छे से समझ में आ जाएगा. और ये वेदांत सार से हम ये कोट किया था किस प्रकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो चक्र है, उस चक्र से कोई अगर बचना चाहते तो उनको आध्यात्मिक गुरु के चरण में शरण लेना चाहिए. जिस प्रकार इसमें उदाहरण देते हैं कि जल राशि इव उपहार पानी, कि जिस व्यक्ति का सर आग में जल रहा है वो तुरंत पानी की ओर भागता है. तो उसी प्रकार भौतिक संसार में जो हमें कष्ट मिल रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी आध्यात्मिक गुरु के ओर जाना चाहिए. और सेकंड ये चर्चा किया त्राणाय कारुण्य घना घनतम. आध्यात्मिक गुरु जो है, हम इस भौतिक संसार में दावानल
वन में जिस प्रकार आग लगते दावानल रूपी अग्नि के द्वारा जैसे हमें कष्ट मिल रहे हैं, और उस अग्नि को दावानल को रोकने के लिए बारिश चाहिए। और आध्यात्मिक गुरु की इसमें तुलना करते घना घना मतलब बादल जैसे हैं, और ये करुणा लेकर आते त्राण करने के लिए। आध्यात्मिक गुरु करुणामय जो बादल की तरह हमें दावानल से बचाते हैं। और आध्यात्मिक गुरु के गुण बताते हैं लास्ट में, प्राप्त कल्याण गुणार्णवस्य, कि आध्यात्मिक गुरु गुण अर्णवस्य, ओशन अर्णवस्य मतलब गुणों का समुद्र है आध्यात्मिक गुरु। और उसमें से हम हरि भक्ति विलास से चर्चा किए किस प्रकार आध्यात्मिक गुरु में कौन कौन से गुण है, ये सारे गुण चर्चा किया था। एंड देन वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ये हम लोगों ने चर्चा किया। और ये श्लोक उच्चारण किया था, गो शब्दस्तु अंधकारस्य रू शब्दस्तन निवारकः अंधकार निरधित्वाद गुरु इति अभिधीयते। आज हम ये चर्चा करेंगे सेकेंड वर्स, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत बादित्रमाद्यन मनसोरसेन रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये बेसिकली श्लोक में आध्यात्मिक गुरु की योग्यता बताते हैं, और विशेष करके इस कलि युग में इस समय आध्यात्मिक गुरु को पहचानने के लिए ये क्वालिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट, और ये एक्चुअली एकमात्र क्वालिफिकेशन इस समय। तो जिस जो गुरु में ये गुण दिखाई देते हैं तो एक्चुअली वो है बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत, महाप्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए कीर्तन नृत्य और गीत। कीर्तन गीत ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हैं, कीर्तन यहाँ पर चैंटिंग और गीत मतलब सिंगिंग। कीर्तन नृत्य गीत और वादित्य, वादित्य मतलब बाजाना, जो इंस्ट्रूमेंट मृदंग करताल। और आध्यात्मिक गुरु जो है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए कीर्तन नृत्य गीत, कीर्तन नृत्य गीत और इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए मनसो रसेना। आध्यात्मिक गुरु मध्यात वो एक प्रकार से उन्मत्त हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए कीर्तन नृत्य गीत और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते वो उन्मत्त जैसे हो जाते हैं। मनसो रसना, और उनके आध्यात्मिक गुरु के मन में हमेशा आध्यात्मिक रस रहते, इसलिए रोमांच कंपज अश्रु तरंग भाजो। रोमांच, ये जो आध्यात्मिक जो स्टैटिक सिम्टम्स उनके शरीर में दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट इसमें बता रहा है कि महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता, आध्यात्मिक गुरु का बेस्ट क्वालिफिकेशन के चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए कीर्तन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, ये प्रभुपाद कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन है ये बेस्ट गिफ्ट है चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन। और इसमें आगे जो बता रहे हैं कीर्तन नृत्य गीत, तो ये 3 प्रकार है एक्चुअली। जप, जो हम जप करते हैं चैंटिंग, और भजन कीर्तन और संकीर्तन, ये 3 प्रकार के चैंटिंग। जप मतलब हम लोग जब सुबह जप करते हैं उसमें हम या हमारे आसपास में 1-2 लोग सुन पाते हैं, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है भजन या कीर्तन। कीर्तन मतलब जो कुछ भक्त लोग एक साथ मिलकर भजन या कीर्तन करते हैं, और उससे भी श्रेष्ठ है संकीर्तन। संकीर्तन मतलब जो रास्ते में स्ट्रीट में जाकर जो कीर्तन करते हैं, जिसमें बहुत से लोगों को बेनिफिट मिलते हैं। तो इसमें दोनों बताते हैं, कीर्तन और गीत। ये कीर्तन और संकीर्तन दोनों ही बताते हैं। जो आध्यात्मिक गुरु इस प्रकार हमेशा कीर्तन और गीत में नियुक्त रहते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उच्च कोरी कोरिले नाम संकीर्तन, जो उच्च स्वर में कीर्तन करते हैं, जंतु मात्र सुनिया पाए विमोचन। इवन जो पशु पक्षी भी ये हरिनाम सुनने से उनको उद्धार हो जाते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये संकीर्तन आंदोलन को शुरुआत की, और आध्यात्मिक गुरु उस चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए संकीर्तन और कीर्तन में हमेशा उन्मत्त जैसे रहते हैं। 6 गोस्वामी के बारे में हमने
देखा कृष्ण कीर्तन गानो नर्तन परम। ये वृंदावन की जो 6 गोस्वामी थे, रूप रघुनाथ, ये भी हमेशा कृष्ण उत्कीर्तन, उच्च स्वर में कीर्तन करते थे। तो उस समय वृंदावन में कोई बहुत कम ही लोग रहते थे, लेकिन फिर भी उच्च स्वर में कीर्तन करते थे। किसके लिए? ताकि वहां पर जो पशु पक्षी है ये भी सुन 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 के उनके भी उद्धार हो जाए। तो कीर्तन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ भी हो सकते हैं, जैसे इसमें बात करें वादित्र, तो प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे करताल, मृदंगा, लेकिन विदाउट भी हो सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कीर्तन मीन्स समटाइम्स चैंटिंग विथ म्यूजिक एंड समटाइम्स स्पीकिंग। इवन भगवान के बारे में चर्चा करना ये भी एक प्रकार कीर्तन है। तो कीर्तन जो शब्द है, ये कीर्तन आते हैं कीर्तयति। कीर्तयति मतलब कीर्ति, जो कीर्ति, किसी की कीर्ति मतलब गुण महिमा जब हम गाते हैं तो वो भी एक प्रकार कीर्तन है। तो म्यूजिक के साथ गा सकते हैं या हम आध्यात्मिक जो विषय के बारे में चर्चा करते हैं, दोनों ही कीर्तन है। जैसे कीर्तन में जो भक्ति के जो नवविधा भक्ति, उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसमें है। तो उसमें हर एक जो अंग में, भक्ति के जो अंग है, उसमें एक एक व्यक्ति को सफलता मिली। जैसे श्रवण में कौन है? परीक्षित महाराज। और कीर्तन में कौन है? कोई बताए, कीर्तन में कौन है? सुखदेव गोस्वामी। हाँ, सुखदेव गोस्वामी। तो प्रभुपाद एक प्रवचन में बताते, सुखदेव गोस्वामी कभी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया फिर भी कीर्तन में श्रेष्ठ है। लेकिन कैसे हो सकते कीर्तन में श्रेष्ठ हो? तो कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया ही नहीं। तो भागवत कथा, तो भगवान के बारे में चर्चा करना भी एक प्रकार से कीर्तन। कीर्तन मतलब गुण महिमा कीर्तन। तो श्रवणे परीक्षित अभवत वयशखी कीर्तने, और कीर्तन में वयशखी मतलब सुखदेव गोस्वामी को ये परफेक्शन या ये सब सिद्धि प्राप्त हुई। तो सुखदेव गोस्वामी सिर्फ भागवतम व्याख्या करते थे, और ये एक प्रकार से कीर्तन है। और इसलिए बोलते हैं बहुवीर मिलित्वा कीर्ता कीर्तयति। जब बहुत सारे लोग एक साथ में होकर कीर्तन करते, उसको एक्चुअली संकीर्तन माना जाता है, सबसे बेस्ट कीर्तन। तो श्रवण कीर्तन दोनों एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी कभार ऐसे लगते श्रवण और कीर्तन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? कोई बोलते श्रवण श्रेष्ठ है, क्योंकि जो नवविधा भक्ति उसमें शुरू में श्रवण आते हैं, श्रवण कीर्तन। लेकिन उसमें ये बताते हैं कि श्रवण जब हम एक बार कर लेते हैं, भगवान के बारे में हम जान लेते हैं, भगवान कौन है, भगवान के स्वरूप क्या है, उसके बाद कीर्तन श्रेष्ठ है। तो शुरू में श्रवण श्रेष्ठ है, लेकिन एक बार जब हम भगवान के बारे में जानकारी मिल जाए तो देन कीर्तन इज एक्चुअली श्रेष्ठ। जैसे भी दोनों बराबर ही है, श्रवण कीर्तन दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम श्रवण हम जान लेते किसी के बाद, देन उनके गुण महिमा कीर्तन करते, इसलिए उसके बाद कीर्तन श्रेष्ठ। तो प्रभुपाद कहते थे कि कीर्तन जो है आध्यात्मिक गुरु की इसमें क्वालिफिकेशन, जो महाप्रभु कीर्तना करते हैं। तो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं 67 इस लेटर में, आई नेवर थॉट अबाउट द ऑडियंस, आई वॉज प्रिपेयर्ड टू चैंट इवन इफ देयर वर नो मैन प्रेजेंट टू हियर मी। तो प्रभुपाद बोलते मैं कभी ऑडियंस के बारे में, दर्शक के बारे में विचार नहीं किया। मैं हमेशा तैयार था कीर्तन करने के लिए, अगर उसमें कोई व्यक्ति, एक भी अगर ऑडियंस नहीं है, फिर भी मैं कीर्तन करता था। द प्रिंसिपल ऑफ चैंटिंग इज टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड, नॉट टू अट्रैक्ट क्राउड। तो प्रभुपाद ये भी बता रहे कि चैंटिंग या कीर्तन करने का मूलभूत क्या है? भगवान की गुण महिमा कीर्तन करना, ना तो किसी बड़े सभा समावेश को अट्रैक्ट करना। If Krishna hears nicely, then he will ask some sincere devotee to gather in such place. तो क्या होता है, अगर कृष्ण हमारे कीर्तन सुनते हैं तो भगवान कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे हमारे कीर्तन से, तो उन्होंने भगवान कृष्ण किसी सिंसियर भक्तों को भेज देंगे हमारे सामने कीर्तन सुनने के लिए। Therefore, we advise that thousands of centers may be started if we find out a sincere soul for each and every center.
तो प्रभुपाद ये बता रहे कि अगर एक भी हर एक सेंटर में एक सिंसियर भक्त भी हो जाए देन दैट इज सफिशिएंट। तो प्रभुपाद ये बता रहे कि कीर्तन जब हम करते तब हमें ऑडियंस को खुश करने के लिए नहीं बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी ये कहते थे जब उनके कुछ शिष्यों को उन्होंने भेजा था प्रचार करने के लिए, लेकिन जब उनको प्रचार करने के लिए भेजा उनके साथ लोकल कुछ भक्तों का झगड़ा विवाद हो गया फिलोसॉफिकल डिविएशन की वजह से। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर से कहते हैं कि गुरु महाराज हम प्रचार नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है कीर्तन। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई नहीं है फिर भी 4 दीवाल को सुनाने के लिए तुम्हें कीर्तन करना चाहिए। ये फेमस भक्ति सिद्धांत ठाकुर का। तो प्रभुपाद इसमें जो बता रहे कि हमें ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद के एक गुरु भाई थे, ये एक्चुअली वैष्णव सदस्य ग्रंथ में गुरु महाराज ने लिखा। प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स आई थिंक गोविंद दास और समथिंग, तो बहुत अच्छा कुकिंग करते थे। प्रभुपाद जब भी उनके शिष्यों को लेके जाते थे सबको प्रसाद बना के खिलाते थे और बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। प्रभुपाद खुद तारीफ करते थे तो मेरे जो गुरु भाई है मतलब ये इतना सिंपल डिवोटी है, यद्यपि ये हाईली एजुकेटेड है लेकिन हमेशा विनम्र रहते थे, सभी वैष्णवों को सेवा करते थे। तो उसके बाद प्रसाद लेने के बाद सब लोग एक बार हमारे गुरु महाराज से मिले थे, तो उनको बताया आप इतने सुंदर इतने मधुर कैसे गाते कीर्तन, तो हम कैसे मतलब आप जैसे ऐसे सुंदर गा सकते मधुर स्वर में। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, बिकम ए प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा देन यू विल आल्सो सिंग स्वीटली। तो तुम भगवान के एक शुद्ध भक्त बन जाओ तो तुम भी बहुत स्वीट तरीके से मधुर तरीके से तुम भी गा सकते हो। तो प्रभुपाद जैसे कि उसमें बता रहे कि नॉट टू अट्रैक्ट क्राउड, हमें किसी मतलब ऑडियंस को खुश करने के लिए नहीं बल्कि भगवान की प्रसन्नता विधान के लिए हमें कीर्तन करना चाहिए। और महाप्रभु कीर्तन नृत्य कीर्तन जब हम बोलते चैतन्य महाप्रभु जैसे देखा है चैतन्य महाप्रभु के स्टाइल में करना चाहिए कीर्तन नृत्य गीत। ये चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार जिस स्टाइल में इवन बाधित इंस्ट्रूमेंट भी चैतन्य महाप्रभु जिस स्टाइल में बजाते थे हमें एग्जैक्टली वो फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। और खास करके जो आध्यात्मिक गुरु है उनको तो फॉलो करना चाहिए। तो आध्यात्मिक गुरु की क्वालिफिकेशन ये है कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जैसे दिए गए उसी प्रकार कीर्तन उसी प्रकार नृत्य उसी प्रकार भजन उसी प्रकार इंस्ट्रूमेंट बजाना। अभी एक्चुअली आजकल कीर्तन एक फैशन बन गए, आपको कीर्तन कैसी किसी भी स्थिति में कैसे भी करें दैट इज ऑलवेज गुड, श्रवण मंगलम। लेकिन प्रभुपाद मतलब काफी स्पेसिफिक थे इस चीज के बारे में कीर्तन। जैसे कई बार प्रभुपाद को रिक्वेस्ट किया बहुत वक्त लोग, प्रभुपाद आप तो बंगाली बैकग्राउंड से आप थोड़ा क्लासिकल स्टाइल में थोड़ा जो गाते हैं लोग बंगाली में आप उस सिस्टम में कुछ भजन गाए हमें सुना है कीर्तन। तो प्रभुपाद बोलते ठीक है बंगाली स्टाइल में जो ट्रेडिशनल 1-2 ट्यून ठीक है बट नया ट्यून नया स्टाइल ये ठीक नहीं है हमारे सोसाइटी के लिए। तो प्रभुपाद उसके बाद बोलते थे कि ये एक प्रकार जो बाबा जी जो लोग हैं उनके मनोभाव हमारे अंदर आ जाएंगे अगर हम इस प्रकार गाते हैं। तो हमें कीर्तन चैतन्य महाप्रभु के स्टाइल में गाने की प्रयास करना चाहिए। ये प्रभुपाद लिखते हैं तो सिंपल तरीके से चैतन्य महाप्रभु जिस बताते हैं। प्रभुपाद और एक उसके नेक्स्ट लेटर में प्रभुपाद ये लिखते हैं कृष्ण कीर्तन इज नॉट मेंट फॉर एंटरटेनिंग द पब्लिक फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आर्ट। तो ये कृष्ण जो कीर्तन है भगवान की कीर्तन ये जो लोगों की मनोरंजन के लिए नहीं है, इट इज डायनामिक सर्विस टू द लॉर्ड। वी डू नॉट देयरफॉर माइंड सो मच अबाउट द आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ कृष्ण कीर्तन। तो प्रभुपाद बता रहे इसलिए हमें क्या बोलते हैं म्यूजिकल परफॉर्मेंस अलग अलग तरीके से कीर्तन प्रेजेंट करना हम एक्चुअली नहीं चाहते हैं, बट वी वांट टू सी हाउ मच ए डिवोटी इज सेटिस्फाइंग द सुप्रीम विल। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि कीर्तन के द्वारा हम कैसे भगवान को संतुष्ट कर पा रहे हैं। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए किसी को मनोरंजन करने के लिए नहीं है कीर्तन बल्कि भगवान की प्रसन्नता विधान के लिए। ये काफी कॉमन है बंगाल में उड़ीसा में अभी भी है। एक नाम कीर्तन करते जैसे यहाँ पर भागवत कथा होती है उसी प्रकार बंगाल में एक नाम कीर्तन मतलब
अच्छा अष्टप्रहर कीर्तन करते हैं, अभी मायापुर में आसपास में गांव में दिखाई देते हैं। अष्टप्रहर मतलब ये लोग का 72 आवर्स, 72 घंटा ये लोग लगातार कीर्तन करेंगे। अलग अलग पार्टी है जो पेमेंट करते हैं, पैसे लेके कीर्तन करते हैं ये लोग। तो अलग अलग ट्यून में ये लोग गाते हैं। मतलब एक हरे कृष्ण महामंत्र कंप्लीट करने में और एक बार 16 अक्षर कंप्लीट करने में मिनिमम 20 मिनट लगेगा। मतलब ऐसे हाँ ऐसे बहुत लंबा खींचते हैं लोग तो पूरे मोहल्ला के गांव के लोग, मतलब हम ये बचपन में देखते हुए बड़े हुए, और सारे जितने गांव के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे। और ये जो जो क्या बोलते हैं प्रोफेशनल कीर्तनिया जो है, ये क्या करते हैं, ये लोग एक प्रकार क्या करते हैं, नशा वगैरह करते हैं। बीच बीच में जाके पीछे जाके दारू पी के आते हैं, नशा करते हैं और आके फिर से कीर्तन करते हैं। लेकिन बहुत एक्सपर्ट, मतलब इन लोग जैसे मृदंग, हारमोनियम और करताल प्लेयर इस्कॉन में भी नहीं है, इतना एक्सपर्ट ये लोग। लेकिन ये प्रोफेशनल है सिर्फ पैसा कमाने के धंधा करने के लिए। और गांव के जितने लोग हैं सब लोग इनके कीर्तन सुन के और धूल में लूटपुट खाते हैं। ऐसे लगते कि पूरा दुनिया में विरक्ति आ गए, डिटैचमेंट आ गए, और एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। आपको यूट्यूब में वीडियो मिलेगा, आप अगर देखेंगे तो एक दूसरे का आलिंगन करते हैं ये लोग, मतलब और रोते रहते हैं, इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं है, सब अनर्थ है, सब बेकार है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र है। थोड़ी देर बाद ही वो लोग सब नशा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो प्रभुपाद एक्चुअली ये जो बाबा जी स्टाइल में, ये सहजी स्टाइल में कीर्तन है, इस चीज को प्रभुपाद कभी एक्चुअली मतलब पसंद नहीं करते थे। इवन हमारे गौड़ीय वैष्णव के द्वारा दिए गए कुछ जो भजन कीर्तन भी प्रभुपाद ने चेंज करके इस्कॉन में कुछ नया स्टाइल के भजन कीर्तन शुरू किए। क्योंकि जो सहजिया लोग गाते, जो सो कॉल्ड गुरुज लोग गाते, जो फॉलो नहीं करते 4 नियमों को, तो उनके स्टाइल में गाने से एक प्रकार से उनके मनोभाव भी हमारे अंदर आ सकते। तो प्रभुपाद इसलिए स्पेसिफिक इस प्रकार के हमें चैतन्य महाप्रभु के स्टाइल में भजन कीर्तन करना जरूरी है। इवन मुझे याद है हमारे गुरु महाराज बहुत जगह 2-3 बार ऐसे हुआ था, एक बड़े फंक्शन में जा रहे थे और दूर से इस्कॉन के भक्त किसी ने ऐसे लंबा ट्यून में गा रहे थे कीर्तन, और वो महाराज हो उनके कमरे से सुने, बोले तुरंत जाके इनके स्टॉप करो। और ये किसने सिखाया? चैतन्य महाप्रभु ऐसे कीर्तन करते थे, प्रभुपाद ऐसे कभी कीर्तन किया? तो महाराज बता रहे थे कि एटलीस्ट चैतन्य महाप्रभु का नहीं, प्रभुपाद जिस स्टाइल में करते थे हमें वो स्टाइल में कीर्तन करना चाहिए। वो तो हम प्रभुपाद के जानते हैं किस प्रकार प्रभुपाद गाते हैं। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट जो आध्यात्मिक गुरु है, एक्चुअली इस में सभी गुरु है, शिक्षा गुरु है, किसी न किसी के महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीतन। तो महाप्रभु जिस स्टाइल में गाते थे हमें भी इस प्रकार गाना चाहिए, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत। और ये बहुत बार देखा हम हमारे गुरु महाराज के साथ, कीर्तन को लेकर जितना बार मीटिंग किया हर एक मंदिर में जहां जाते थे कीर्तन के लेकर मीटिंग करते थे। मायापुर में भी कितने बार कीर्तन के लेकर मीटिंग की, उज्जैन में भी बहुत बार मीटिंग की कीर्तन लेके, कीर्तन किस स्टैंडर्ड में होना चाहिए। एक बार मायापुर में सारे ब्रह्मचारी के साथ मीटिंग कर दी, तो बता रहे थे कि महाराज की कीर्तन जब हम करते हैं, जो भारतीय लोग, हम लोग चाहे तो शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे हो गया लोगों को दिखाने के लिए, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन ट्यून में हम लोग गाते हैं। मतलब जो फॉरेनर जो है, वेस्टर्न जो है, वो सही उच्चारण नहीं कर पाते, लेकिन उनके जो डिवोशन है भगवान उनको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे चाइनीज जो डिवोटीज लोग, वो लोग र नहीं बोल पाते, तो हरे कृष्णा लाम लाम हरे हरे, तो वो लोग जैसे गाएंगे भगवान जरूर उनकी जो भक्ति है उससे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हम अगर जानबूझ के हम सही उच्चारण कर पाते, लेकिन जानबूझ के किसी को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा अलग अलग स्टाइल में हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करेंगे, तो ये एक्चुअली ये सही नहीं है। तो इसलिए सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, क्राउड को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रॉपर जो बता रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता विधान के लिए हमें कीर्तन करना चाहिए। ना तो प्रॉपर बता रहे हैं वी डू नॉट माइंड सो मच अबाउट द आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ कृष्ण कीर्तन। इवन मुझे लास्ट ईयर ही एक भक्त तुलसी आरती गा रहे थे, एक्चुअली इस समय सितंबर में एक भक्त तुलसी आरती गा रहे थे, तो महाराज बहुत नाराज हो गए थे और ऊपर आके बोल रहे ये भक्त जब भी गाते मुझे लग रहा है फुल ऑफ एरोगेंस ऐसे गा रहा है लोगों को दिखाने के लिए। मतलब ऐसे कीर्तन कैसे हो सकते? कीर्तन मतलब भगवान की प्रसन्नता विधान के लिए, वो हृदय से, हमारे हृदय से दिल से आना चाहिए कीर्तन। तो बेसिकली कीर्तन, ये जो महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत, चैतन्य महाप्रभु क्यों गाते थे? चैतन्य महाप्रभु गाते थे भगवान कृष्ण के
प्रसन्नता विधान के लिए, सबको कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये पर्पस है एक्चुअली कीर्तन। और उसके बाद हाँ, उस मीटिंग में क्या होता है महाराज, तो मैं था एक बार, उन्होंने मुझे बताया एक काम करो, ये टेप रिकॉर्डर लेके आओ और उसमें ये चलाओ अच्युतानंद प्रभु और विष्णुजन प्रभु के कीर्तन चला। ये प्रभुपद के दो शिष्य थे जो शुरू में ज्वाइन किए प्रभुपद के साथ अमेरिका में, और प्रभुपद खुद इन लोगों को जो गौड़ीय वैष्णव सॉन्ग गाने के लिए उनको बताया, विष्णुजन स्वामी और अच्युतानंद प्रभु। और प्रभुपद खुद स्वयं प्रभुपद इनको एक प्रकार से रिकॉग्नाइज की कि ये दोनों सबसे बेस्ट सिंगर है उस समय, प्रभुपद ने बताया। तो हमारे गुरुवंश बोले सब भक्तों को सुनाओ ये कैसे गाते हैं। तो सब सुनने के बाद कितने सिंपल, कितने स्वीट, हृदय से गा रहे थे। तो महाप्रभु कीर्तन नृत्य भी, तो इसलिए ये करना चाहिए महाप्रभु के स्टाइल में कीर्तन। एंड देन नृत्य भी चैतन्य महाप्रभु के स्टाइल में नृत्य करना जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु वैसे नृत्य करते थे, और चैतन्य महाप्रभु के सभी लीला में हम देखते चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार नृत्य करते थे। नाचे रे नितय गौर दी जमानिया। चैतन्य महाप्रभु इवन जो कुछ करते थे नृत्य के साथ ये करते थे। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं डांसिंग इज ए स्पेशल बेनेडिक्शन गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु। डांसिंग चैतन्य महाप्रभु इसलिए करते थे क्योंकि डांसिंग जब नृत्य करते हैं तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है जब नृत्य के साथ किसी को कुछ शिक्षा देते हैं, है ना। तो आप चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति की शिक्षा दे रहे, किसी नृत्य करते करते शिक्षा दे रहा है। ऐसे हमारे स्कूल कॉलेज में कोई टीचर देखा क्लास में आकर नृत्य करते करते शिक्षा देते हमें, तो ये दो ही टीचर है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। ये नृत्य करते करते शिक्षा देते सबको, और ये बोलते यही शिक्षा दिया सब, यही शिक्षा दिया सब न दिया सिरछे से गौर निकाय। और ये जो शिक्षा कि राधा कृष्ण बोलो 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 रे सबाई, चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं। और कैसे पूरे नवद्वीप में मायापुर में नृत्य करते करते हर घर घर जाकर चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दे रहा है। तो ये इसलिए काफी चैतन्य महाप्रभु के जो प्रोसेस है ये काफी इम्पोर्टेंट, बहुत इजी है डांसिंग। और कौन व्यक्ति डांसिंग करते जो बहुत खुश है, तो चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे कि कृष्ण कीर्तन करने से हमारे हृदय इतने प्रसन्न हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली डांसिंग आ जाती है, ऑटोमेटिकली डांसिंग आ जाती है। चैतन्य महाप्रभु के लीला में हम देखते हैं बक्रेश्वर पंडित उदाहरण, इसमें आप लोग देख सकते हैं। इसमें जब श्रीवास ठाकुर के घर पे चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला में थे उस समय ये बक्रेश्वर पंडित ये डांस कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में। 72 आवर्स 72 घंटा कंटिन्यूअसली डांस करते बिना रुकावट के, बीच में प्रसादम भी नहीं है बिना रुकावट के चैतन्य महाप्रभु के सामने 72 आवर्स डांस कर दो। और चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो उनका नृत्य देखकर, 72 घंटे, ये ऑलमोस्ट मतलब 3 दिन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बक्रेश्वर कि तुम मेरा एक पंख हो, जैसे पक्षी के पंख होते हैं, मुझे और एक पंख मिल जाते मैं तो आसमान में उड़ते रहूंगा। तो इतने प्रसन्न थे चैतन्य महाप्रभु बक्रेश्वर पंडित, क्यों? सिर्फ नृत्य करते थे बक्रेश्वर पंडित, इसलिए। और प्रभुपाद भी सारे दुनिया में जाकर सबको नृत्य कराए हैं। डांसिंग एलिफेंट बोलते, डांसिंग व्हाइट एलिफेंट, जब विदेशी लोग अंग्रेज लोग नृत्य करते थे चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन, प्रभुपाद के कीर्तन के साथ, इतने प्रसन्न हो जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु खास करके कीर्तन डेफिनेटली इज देयर, चैंटिंग भी है, लेकिन नृत्य करने से भी चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। इवन जब प्रभुपाद एक बार ये कर रहे थे, प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे आई थिंक यूरोप में, लंदन में कहीं, और उस समय जब सारे यूरोपियन भक्त लोग नृत्य कर रहे थे उनके सामने प्रभुपाद इतने प्रसन्न हो गए थे, प्रभुपाद मतलब एक प्रकार भावुक हो गए थे, कितने सुंदर लग रहे विदेशी लोगों को ऐसे नृत्य कर रहे हैं। और प्रभुपाद तुरंत बताया कि एक काम करो तुम लोग 2 आसन लेकर आओ, है ना। ये फर्स्ट टाइम है ना प्रभुपाद के, तो आसन उन लोग रख दिए। बाद में प्रोग्राम के बाद उन लोग प्रभुपाद आसन किसके लिए मंगाया आपने? तो तुम लोग इतने सुंदर तरीके से नृत्य कर रहे थे, तुम लोगों को नृत्य देखे नारद मुनि आ गए तुम्हारा नृत्य दर्शन करने के लिए।
लेकिन बाकी लोग दर्शन नहीं कर पाए, सिर्फ प्रभुपद के देखने को मिला। तो ये नृत्य इतने प्रसन्न करते चैतन्य महाप्रभु को, जो कीर्तन के साथ नृत्य करते हैं। तो कभी कभार ऐसे हो सकते हैं हमें अच्छे नहीं लगते नृत्य करने में, बोलो प्रभु आ जाए, नहीं, बहुत गुस्सा हो जाते कभी कभार बुलाने से भी। तो शुरू में हो सकते हैं, यद्यपि कीर्तन ये करने से नृत्य आने चाहिए ऑटोमेटिकली, लेकिन नहीं आ सकते, इसलिए हमें अलग से प्रैक्टिस करने से कोई नुकसान नहीं है। अलग से भी हम कीर्तन में प्रैक्टिस करते करते हो सकते है एक समय नेचुरली भी कीर्तन में नृत्य करने की इच्छा है। तो प्रभुपाद प्रभुपाद के फेमस स्टेटमेंट ये 1971 में प्रभुपाद जो लेटर लिखे इसमें लिखा, आवर प्रोग्राम इज द सेम एवरीवेयर, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, ये सब लोग जानते हैं, ऑन कृष्ण प्रसादम। एज सून एज वी गेट सम अपॉर्चुनिटी, नो मैटर टेक्सास और चाइना, वी contaminate the place with Krishna. We contaminate the place with Krishna. That's all. Contaminate मतलब जनरली हम गलत तरीके से जानते हैं, लेकिन contaminate मतलब हम शुद्ध कर देते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो है ना, तो हमें जब भी ये मौका मिलते हैं हम उसी जगह में डांसिंग, चैंटिंग, फिस्टिंग, ये कृष्ण कथा शुरू कर देते हैं। ये प्रभुपाद के बारे में बोलते थे, प्रभुपाद ये 70 इयर्स में ऐसे डांसिंग करते थे, मतलब सरप्राइज हो जाते लोग, जैसे यंग कोई व्यक्ति डांसिंग कर रहे थे। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये भगवान के कीर्तन करने से, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता। एक प्रभुपाद के शिष्य है, मैं उनको जानता हूँ लॉस एंजलिस में, अमल भक्त महाराज। अभी उनकी उम्र करीब 80 के आसपास। वो अभी कुछ साल पहले सन्यास है, लेकिन प्रभुपाद से दीक्षा लिए थे। इतने पावरफुल 80 साल एज में उन्होंने अभी भी जो डांस करते हैं, बाहर के लोग भी ऐसे डांस नहीं कर पाते हैं, बहुत ही पावरफुल। तो कीर्तन करने से भक्तों के हृदय में एक प्रकार आनंद आ जाते, जोश आ जाते, इसलिए ऑटोमेटिकली इस प्रकार डांस करते। तो महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता बादित माद्रन मनसो रसेना, ये 4 चीज बता रहे चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार दिए गए, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए कीर्तन, नृत्य, गीत और बाधित्य, इसके द्वारा आध्यात्मिक गुरु मध्यात्म, आध्यात्मिक गुरु उन्मत्त जैसे रहते हैं, हमेशा मग्न रहते हैं इसमें। कीर्तन, डांस, कीर्तन, नृत्य और गीत और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाद्य के साथ वो बजाते हैं। तो ये भी आध्यात्मिक गुरु के एक गुण है कलयुग में, खास करके इंस्ट्रूमेंट जो है ये इम्पोर्टेंट है। यद्यपि प्रभुपाद सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं बोलते थे, लेकिन कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट मृदंग, करताल ये जानना काफी जरूरी है। ये प्रभुपाद ये बोलते थे कि एक अगर कोई इस्कॉन में भक्त जो है मृदंग बजाना और भागवत गीता प्रवचन करना जानते, तो हर एक जगह में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, किसी भी जगह में प्रोग्राम कर सकते हैं, किसी भी जगह में वो सक्सेसफुली प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं। सिंपल मृदंग बजाना सीखना है और भागवत गीता से प्रवचन देना सीखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट सीखना है, इतना उतना डिफिकल्ट नहीं है, हम थोड़ा प्रयास करेंगे तो हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि ये रोज हम लोग गाते हैं। आध्यात्मिक गुरु क्या है? बाधित्र माध्यम, आध्यात्मिक गुरु इस प्रकार इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भगवान चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन, नृत्य, गीत में मग्न रहते हैं। और मनसो रसेना, मनसो रसेना, उनके मन में हमेशा आध्यात्मिक रस भरपूर रहते हैं। और इसलिए नेक्स्ट जो बात है, रोमांच कंप श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, तब उनके शरीर में ये इस प्रकार एक्सटेटिक सिम्टम दिखाई देते हैं। तो रोमांच मतलब शरीर के रोम खड़ा हो जाते हैं, कंप शरीर में कंपन आ जाते हैं, और अश्रु तरंग, और आंखों से आंसू बहते किस प्रकार तरंग, लहर जैसे। ये भागवतम में एक श्लोक है, जब भगवान कृष्ण के नाम को इस प्रकार जप करते तो उनकी स्थिति क्या होती है। 11 कैंटो में ये बताते हैं, एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्ता जातानुराग द्रुत चित्ते उच्छै हासती अथो रोदिति रोति गायती उन्मादवन नृत्यति लोकवाई है। तो कभी कभी ऐसे लोग प्रश्न पूछते, भक्त लोग प्रश्न पूछते कि जब हम कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जप करने से हमें उन्नति हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है? प्रूफ क्या है? ये 11th कैंटो में 2nd चैप्टर में 40 नंबर श्लोक में ये बता रहे हैं।
कि चैंटिंग करने से किस प्रकार बेनिफिट, या चैंटिंग करने से क्या बेनिफिट हो रहा है इस श्लोक में बताते हैं। एवं व्रत स प्रिय नाम कीर्ता, जब हम भगवान के पवित्र नाम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम फर्स्ट सिम्टम क्या है कीर्तन करने से, क्या होना चाहिए? जात अनुराग, जात मतलब जन्म लेना है, और अनुराग मतलब अटैचमेंट, भगवान के नाम के प्रति अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। फर्स्ट सिम्टम, जब अटैचमेंट बोलते हैं मतलब आसक्ति, आसक्ति मतलब वो और ये छोड़ना नहीं चाहते, मतलब किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में ये भगवान का नाम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये फर्स्ट एक्चुअली सिम्टम है एडवांसमेंट की, कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हमें कैसे पता चलेगा एडवांसमेंट हो रहा है। फर्स्ट है जाता अनुराग, किसी भी स्थिति में वो हरे कृष्ण महा, ये इम्पोर्टेंट। तो अटैचमेंट, जैसे हम भक्ति के जो ये बोलते हैं 9 स्टेजेस, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, एंड देन आसक्ति, आसक्ति भाव एंड प्रेम। तो आसक्ति मतलब निष्ठा, रुचि, देन आसक्ति काम। तो या तो अनुराग मतलब डीप अटैचमेंट को ऊपर ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति हरिनाम करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, उनका फर्स्ट ये सिम्टम है, वो एडवांस कर रहे हैं कि भगवान के नाम के इतना अटैचमेंट हो जाते हैं कि वो कभी भी इसको छोड़ते नहीं, क्योंकि उससे पहले रुचि, टेस्ट डेवलप हो जाते हैं, और साथ में तो निष्ठा, फिक्स अप हो जाते हैं भगवान के नाम के प्रति। तो इतना अटैचमेंट तो कभी छोड़ते नहीं है। तो फर्स्ट सिम्टम। एंड देन द्रुत चित्त उच्छोई, द्रुत चित्त और द्रुत चित्त मतलब हार्ट, उनके हृदय पिघल जाते हैं इस प्रकार हरिनाम सुनने से। उच्छोय, ये सेकंड सिम्टम, उच्छोय हासक्ति, और उच्छ्वसर में वो कभी कभार हंसते रहते हैं। अथो रोदिति, और कभी कभार उच्छ्वसर में रोते रहते हैं। और रोती गायती, कभी कभार चिल्लाते भी रहते हैं। उन्माद व नृत्य, कभी कभार पागल जैसे, उन्माद पागल जैसे नृत्य करते हैं, लोक वाही हुई, और लोग क्या बोलते हैं उस चीज की परवाह नहीं करते। तो ये पवित्र भगवान के पवित्र नाम जप करने से इस प्रकार सिम्टम आते हैं, जो ये श्लोक में बता रहे एग्जैक्टली सेम, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता। तो इस प्रकार सिम्टम देखिए, कभी उच्च स्वर में हंसते, कभी उच्च स्वर में रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं, और कभी पागल जैसे नृत्य करते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु के बारे में ये बताते हैं, नित्यानंद प्रभु ऐसे पागल जैसे नृत्य करते थे। कभी कभार कुछ लोग अगर चैतन्य महाप्रभु से शिकायत करते थे, ये किसको भेजा आप प्रचार करने के लिए, ये उनका धोती वगैरह भी ठीक नहीं रहती, किसी के घर में जाते ऐसे उन्माद पागल जैसे नृत्य करते हैं। तो ये एक प्रकार पागल जैसे नृत्य करते हैं, और पब्लिक जो बोलते हैं उसकी तो परवाह नहीं करते। तो ये जो भगवान के नाम कीर्तन करते हैं उनकी ये क्षमता है। लेकिन भौतिक संसार में हम हमेशा सोचते हैं कि पब्लिक क्या बोलेंगे, हम कीर्तन करें, सबके सामने कीर्तन कर रहे, नृत्य कर रहे, क्या बोलेंगे। तो ये भजन में बोलते हैं के तुम्हाके कवे की कथा कहिबे, से कथा भाविले आर की चलीबे। अगर भक्ति में किसी को एडवांस करना है तो ये हमें भी सोचना नहीं चाहिए के तुम्हाके कवे की कथा कहिबे, कौन हमें कब क्या बोल रहे इसके, और हम देखेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान हमें कैसे देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इस मतलब लोग को बाई हुई, तो पब्लिक क्या बोलेंगे उस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। तो यद्यपि इसमें एक्सटेटिक सिम्टम के बारे में बात है, रोमांच, रोम जो है शरीर के जो रोम है, रोम खड़ा हो जाते हैं इस प्रकार जब भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। ये जो सिम्टम है प्रभुपाद बोलते हैं ये आउट ऑफ लव भी होता है, आउट ऑफ फियर भी हो जाता है ना। कभी कभार सर्दी में भी रोम खड़ा हो जाते हैं बट लेकिन वो एक्सटेटिव सिम्टम नहीं माना जाते, वो ठंडे के वजह से होते हैं, है ना। ये कंपन भी कभी आ सकते हैं, कभी जैसे शेर आ गया, कभी डर लग गया तो व्यक्ति कंपने लगते हैं। तो ये भौतिक संसार में जो हम ऐसे देखते हैं ये आउट ऑफ फियर, डर के वजह से, लेकिन ये आउट ऑफ लव हो सकते हैं। और अश्रु तरंग बहा जो, और आंखों से आंसू गिरते मानो जैसे तरंग जैसे, लहर जैसे।
ये चैतन्य महाप्रभु के लीला में बहुत बार देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब यमुना दर्शन करते हैं, चटक पर्वत दर्शन करते हैं, गोवर्धन समझते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, ऐसे वर्णन है कई बार चैतन्य महाप्रभु की आंखों से आंसू गिर रहे, ऐसे लग रहे कि पिचकारी मार, जैसे पिचकारी से रंगो, जैसे ये करते ना होली में पिचकारी मारते, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की आंखों से इस प्रकार आंसू है। तो अश्रु तरंग भाजो, ये बता रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक जो एक्सटेटिक सिम्टम ये मैनिफेस्ट होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आध्यात्मिक गुरु है, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए नृत्य कीर्तन करते हैं। लेकिन इस प्रकार सिम्टम अभी भी ऐसे नहीं कि देखने को नहीं मिलता, अभी भी है। जो इस्कॉन के बहुत सारे भक्त, वरिष्ठ भक्त, उनके अंदर इसको सिम्टम है, लेकिन वो बाहर दिखाते नहीं। ये भक्त सिद्धांत ठाकुर इसको कंडेम करते हैं। भक्त सिद्धांत ठाकुर बताते कि जो भगवान के भक्त हैं वो डिस्प्ले करने के लिए नहीं है, तो जो एक्सटेटिक सिम्टम बाहर के जो लोग हैं वो लोगों को दिखाने के लिए दिखाते हैं। उनके अंदर के आंखों से आंसू गिर रहे हैं, बहुत शरीर कांपने लगा, उनके रोम खड़े हो गए। लेकिन भक्त सिद्धांत ठाकुर ये बोलते हैं ये सहजीय लोगों के मनोभाव है। जो शुद्ध भक्त है वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते, शुद्ध भक्त लोग इस प्रकार दिखाना नहीं चाहते। इवन चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब गोदावरी के किनारा में चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं, और पहली मुलाकात में चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से जैसे मिलते हैं, एक दूसरे को देख के उनके अंदर एक्सटेटिक सिम्टम मैनिफेस्ट हो जाते हैं, और दोनों ऐसे सभी रोमांच, कंपशु, तरंग, सब लोग सभी आध्यात्मिक सिम्टम चैतन्य महाप्रभु में देखने को मिलते। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु देखा कि रामानंद राय चूंकि गवर्नर थे, वहां के सरकारी जो कर्मचारी थे, और उनके साथ बहुत सारे एम्प्लॉइज लोग थे, बहुत लोग थे उनके जो सर्वेंट्स, और उन लोगों को देखे चैतन्य महाप्रभु अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि जो बाहर के लोग हैं इनको दिखाने के लिए नहीं है स्पिरिचुअल है, एस्थेटिक सिम्टम। तो एस्थेटिक सिम्टम अभी भी बहुत सारे वैष्णव, लेकिन ये विनम्रता की वजह से इन लोग दिखाना नहीं चाहते। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे में बोलते, उनके शरीर में कई बार, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे, सबके सामने ये नहीं दिखाते। इवन प्रभुपाद की लीला में देखते हैं, श्रुतकीर्त प्रभु जो बताते हैं, प्रभुपाद के फेमस फर्स्ट टाइम प्रभुपाद जब मायापुर फेस्टिवल में थे प्रभुपाद, और उस समय हजारों भक्त आए थे प्रभुपाद से मिलने के लिए, और जयफुल इवेंट चल रहा था, सब लोग खुश, मायापुर में हजारों भक्त अलग अलग देशों से सब लोग आए, और शुरू में मायापुर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, पूरे विश्व के लोग आए थे उसमें, और टेम्पल रूम में सब लोग इकट्ठे हुए थे, टेम्पल रूम में सब लोग एकत्रित हुए थे प्रभुपाद के प्रवचन सुनने के लिए, हजार भक्त थे सभी देशों से। और जब प्रवचन देते देते सडनली प्रभुपाद मतलब चुप हो गए, प्रभुपाद कुछ बोल नहीं रहे, और प्रभुपाद की आंख बंद कर ली, बैठा समय बैठे हुए थे प्रभुपाद, और इतने हजारों भक्त थे अलग अलग देशों से, और सडनली सबका कीर्तन रुक गया। प्रभुपाद मतलब सबका कीर्तन नहीं, तो सब लोग जो सबका आवाज बंद हो गए, एक्चुअली प्रभुपाद प्रवचन देते देते रुक गए। और श्रुतकीर्त प्रभु उसमें बताते कि ऐसे लग रहा था कि पिन भी अगर ड्रॉप होता तो उस कमरा में सुनाई नहीं देता, मतलब इतना साइलेंट हो गया सब लोग कि प्रभुपाद की और सब लोग देख रहे हैं, प्रभुपाद आंख बंद करके ऐसे लग रहा है कि कुछ भाव में चले गए, भावावेश में प्रभुपाद। और उस समय सब भक्त लोग सोचे क्या करना चाहिए, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद आंखें बंद करके प्रभुपाद बैठे में बैठे हुए और कुछ बोल भी नहीं रहे। अब ये सारे भक्त लोग उस समय नया नया आए, उनको पता नहीं चल रहा क्या करना चाहिए। और ब्रह्मानंद महाराज उस समय प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे उस समय। तो मतलब ऐसे श्रुतकीर्त वर्णन किया कि इतना साइलेंट हो गए सब लोग जो श्वास भी ले रहे थे ना, धीमे धीमे ले रहे थे उनको लग रहा था प्रभुपाद का डिस्टर्ब ना हो जाए कि प्रभुपाद तो जानते थे भक्त, इसलिए प्रभुपाद भाव आवेग में चले गए, लेकिन उनको ये सरप्राइज भी लग रहा था क्योंकि प्रभुपाद कभी ऐसे नहीं करते थे पब्लिकली। तो सब लोग ऐसे बहुत मतलब चुप शांत हो गए थे, पूरे वातावरण मंदिर हॉल। और ये फर्स्ट टाइम सब लोगों ने ऐसे देखे कि प्रभुपाद के शरीर में एक्सटेटिक सिम्टम, इससे पहले देखा ही नहीं कभी, क्योंकि प्रभुपाद कभी विनम्र थे, ये देखा तो नहीं। और कुछ भक्त लोग श्रोता के बहुत खुश भी है, चलो हम हमारे पिछले सौभाग्य है, प्रभुपाद को भावावेश में देख रहे हैं हम लोग,
तो इसलिए वो लोग खुश भी है, वो लोग दर्शन कर रहे हैं प्रभुपाद के इस प्रकार। तो और मतलब सडनली एक सन्यासी प्रभुपाद के बगल में बैठे हुए थे और उन्होंने अचानक नमो ओम विष्णुपद कीर्तन शुरू कर दिया। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, और ऐसे कीर्तन शुरू कर दिया। और बाकी बहुत सारे भक्त लोग जो इसका आनंद ले रहे थे कि प्रभुपाद भावावेश में, बहुत सारे भक्त लोग गुस्सा हो गए, तुमने क्यों कीर्तन शुरू किया? कितने सुंदर प्रभुपाद का हम दर्शन कर रहे थे, भाव में एक्सटेटिक सिम्टम, ऐसे लग रहे कि आंखों से आंसू आ रहे प्रभुपाद के। तो प्रभुपाद मतलब जग गए और सब लोग, बाकी उस सन्यासी जो है जो कीर्तन किए प्रभुपाद को जगा दिए। तो बाद में उन लोग सोचते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कीर्तन उन्होंने जो किया उचित या अनुचित था। तो सब लोग ब्रह्मानंद महाराज के पास गए और ब्रह्मानंद महाराज चूंकि प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे, तो ब्रह्मानंद महाराज सेक्रेटरी थे। तो ब्रह्मानंद महाराज सभी बहुत सारे भक्तों से चर्चा किया कि ये कोई बोलते ये सही किया क्योंकि कीर्तन करना तो कुछ गलत नहीं है, और कोई बोलते नहीं नहीं ये प्रभुपाद आध्यात्मिक और इस प्रकार भावावेश में उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इनको कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा था, कोई बोल रहे ये सही किया कोई गलत किया। तो उन्होंने सोल्यूशन नहीं है, चलो प्रभुपाद के पास जाते हैं। तो भवानंद महाराज प्रभुपाद के पास आते हैं। तो प्रभुपाद के पास आके भवानंद डर डर के बोलते हैं कि प्रभुपाद आपको याद है जब आप प्रवचन दे रहे थे काल, उस समय आप थोड़ी देर के लिए रुक गए थे और आप भावावेश में चले गए थे। प्रभुपाद को बता रहे, प्रभुपाद आपको याद है क्या? तो प्रभुपाद तब उनको मतलब बहुत मधुर स्वर में प्रभुपाद बताया कि मुझे याद है लेकिन मैं एक्चुअली मतलब हमेशा ऐसे नहीं करना चाहता हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है। प्रभुपाद बताया उनको मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूँ लेकिन कभी कभार ऐसे हो जाते हैं, कभी कभार। प्रभुपाद ऐसे बताया उनको। प्रभुपाद एग्जैक्टली बताया कि आई डू नॉट डू दैट वेरी ओपन, मतलब मैं मतलब बहुत क्या बोलते हैं हाँ खुलेआम में ये नहीं करता हूँ। तो ब्रह्मानंद महाराज से प्रभुपाद हम एक्चुअली समझ सकते हैं आपकी विनम्रता, आपके अंदर इस प्रकार सिम्टम्स है, लेकिन आप विनम्रता के वजह से आप दिखाना नहीं चाहते। लेकिन एक्चुअली अभी प्रश्न ये है कि ऐसे इस प्रकार जब होता है हमारे सामने हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न तो वो नहीं है। तो इस प्रकार जब होता है हमें क्या करना चाहिए? तो हम क्या वहां बैठे रहे, मतलब आपको ऐसे देखते रहे? तो विदेशी भक्त थे प्रभुपाद तो सरल मन में बोल दिया कि हम ऐसे देखते रहे क्या हम जब शुरू करें उस समय। तो प्रभुपाद बोल रहे जस्ट चैंट ना। प्रभुपाद थोड़ा सा नाराज हो गया कि ये इतना बड़ी बात नहीं है, तुम इस चीज को इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं? इस बात को ये इतना बड़ा कुछ इंसिडेंट नहीं है, इस चीज को लेकर इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली मतलब बाद में बात रहे थे, मतलब ये श्रुतकीर्ति प्रभु ब्रह्मानंद जो महाराज की प्रभुपाद इतने विनम्र थे और इससे लोग गुस्सा हो गए क्योंकि भक्त लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे थे। तो भगवान के जो भक्त हैं उनके अंदर इस प्रकार सिम्टम दिखते हैं, अभी भी बहुत सारे भक्तों के अंदर है, लेकिन वो प्रकाश नहीं करते। वो जो क्वालिफाइड व्यक्ति जो नहीं है उनका प्रकाश नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे लीला में ऐसे देखने को मिलते हैं। तो प्रभुपाद का ये सिम्टम जो है एक्सटेटिक सिम्टम, रोमांच है, रोम खड़े हो जाना, आंखों से आंसू बहना या कंपन, शरीर में कंपन, ये यद्यपि हम लोगों ने नहीं देखा लेकिन प्रभुपाद बोलते थे प्रभुपाद के एक्सटेटिक सिम्टम सब लोग देख सकते हैं। प्रभुपाद के एक्सटेटिक सिम्टम कब आते हैं? जब प्रभुपाद ये तात्पर्य लिखते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य जब लिखते हैं वो है प्रभुपाद बोलते दैट इज माई एक्सप्रेस। तो प्रभुपाद के वो है एक प्रकार एक्सप्रेस, ये तात्पर्य के द्वारा हम जब देखते हैं किस प्रकार एक्सटेटिक मूड में है। लेकिन जब प्रभुपाद शरीर छोड़ रहे थे उस समय प्रभुपाद की जो तात्पर्य है वो हम अगर देखते हैं किस प्रकार। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों का एक्सपीरियंस है कृष्ण भाव, और ये एक्चुअली भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करते हैं। तो इस श्लोक में बेसिकली ये बता रहे कि महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता, कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए कीर्तन, नृत्य, गीत और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर हम बजाते हैं और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है शिक्षा को फॉलो करते हैं तो इस प्रकार एक्सटेटिक सिम्टम हमारे शरीर में आ सकते हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु में इसका डिटेल्स विस्तार से एक्सटेटिक सिम्टम जो है ये रूप गोस्वामी व्याख्या करते हैं। तो ये एक्सटेटिक सिम्टम एक प्रकार से भक्तों को आनंद देते हैं और भक्ति में आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिलती है, और इसको बोलते प्रत्यक्ष अवगमन धर्मम
सुसुखम कुरुतम अभयम। जिस प्रकार भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कृष्ण भक्ति करने से डायरेक्ट एक्सपीरियंस ये मिलते हैं। और ये प्रभुपाद बताते हैं कि ये कृष्ण भक्ति हम जब करते हैं तब हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलते हैं, ये एक्सटेटिक जो सिम्टम उसके माध्यम से। ये एक प्रकार से ये जो एक्सटेटिक सिम्टम है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया, ये कीर्तन और नृत्य करने से इस प्रकार से मैनिफेस्ट हो सकते हैं। So we'll finish with one quote from Srila Prabhupada. Prabhupada लिखते हैं 1960 में, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म सुसुखम कर्तुम अभयम, and very nice to perform, chant and dance and eat. What do you want more? जप करो, नृत्य करो और प्रसाद सेवन करो। और क्या चाहिए हमें? Simply chanting, dancing and eating. Nice sweet balls, कचौड़ी। So susukham and kurutum abhayam. While performing, while practicing this process, it is very pleasurable and abhayam. और ये अभय है। अभयम means whatever you do, even if you execute 1% of this movement, that is your permanent asset, permanent asset. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की, बहुत समानंदे। हरि हरि। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so very much, Prasannan Prabhu. मुझे I didn't even realize कि 1 घंटा पूरा हो गया। और हरे कृष्णा। so it was so radiant to hear. I never thought Romanchakam Pashrutaranga Bhago. It's so deep. So thank you so very much. Devotees, do we have any questions? Does anybody has any question or comments for Prabhuji? So we can ask. Okay. Self-explanatory. And you explained very nicely, Prabhuji. This we sing every day, but it is so wonderful when we hear all this. Oh, sorry. So thank you so very much, Prabhuji. You explained so nicely. And when we hear, then we realize how much depth is there in Acharya's songs. So we are very, very grateful, and we hope and we pray to all the devotees that when we sing tomorrow morning, then in the second verse, first verse, last week we got some injection, and today we got second verse injection. So hopefully tomorrow when we sing Mangalarti, then there'll be some depth in our emotions, and we can then pray for Rasanand Prabhu also, how nicely he's teaching us one by one each verses. So thank you so very much, Rasanand Prabhu. So we will loudly chant one Hare Krishna Mahamantra to show our gratitude and thanks to Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. His Grace Rasanand Prabhu ki jai. Jai. Guru Srila Prabhupada ki jai. Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Hare Krishna Prabhuji. Dandavat pranam Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. I'll see some of you tomorrow morning. Yes. Yes. Thank you, Prabhuji. So thank you everyone. So now, like Prabhuji said, जिनकी कल भक्ति शास्त्र की क्लास है, प्लीज अपना चैप्टर पढ़िए और इतने सारे वो शॉर्ट क्वेश्चन थे सारे के सारे। और एक माता जी ने भी बोल दिया कि प्रभु जी वर्सेस कभी याद करेंगे, तो मेरा दिल याद रह गया। मैं कहा लो अभी तो ये भी एक याद करने उनको याद करा दिया। सो एनीवे, आपका दिल आधा रह गया तो हमारा क्या हाल होना है? नहीं माता जी, मुझे तो याद नहीं होता है what to do. I can't remember verses. So thank you so very much. Hare Krishna. All glories to Shri